وہ تو آپ کو عظیم بٹ کے حوالے کرتا ہوں میں، وہ سمجھائے گا آپ کو ویسے نہیں سمجھ آئے گا۔ اچھا، اس کے اندر خطبہ الہامیہ کی عبارت ذرا غور کیجیے گا، لکھا ہے اور اس عمارت میں آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جہاں پہ انہوں نے ختم نبوت کو یعنی نبوت کو ایک مثال دیتے ہوئے ایک محل کی تشبیہ دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ اس کے اندر ایک آخری اینٹ کی جگہ باقی ہے جو میری تھی اور میرے بعد وہ مکمل ہو گئی۔ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی یعنی منہم علیہم، پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ یہاں پہ مرزا غلام محمد قادیانی نے وہ جو انعام سے ملنے والی نبوت تھی نا، منہم علیہم انمت علیہم والی، اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ اس کی آخری جو اینٹ تھی وہ میں تھا اور میں نے وہ پوری لگا کے وہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے بعد کمال تک پہنچنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو بات چل رہی تھی نا یہ ذلی بروزی والی، یہ بھی مرزا قادیانی کی سٹیٹمنٹ سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو پیش کرنا پڑے، مرزا بشیر احمد احمد کو پیش کرنا پڑے۔ جی کل اس صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے وہی مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور مرزا جی نے اپنے لیے کاپی کر کے تو خطبہ لانے میں لکھ دیا ہے۔ تو چلے اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اب تو مر گیا بندہ، کیا کہنا اس کو۔ یار یہ آپ لوگوں نے کب تک کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کو، غلطی کا ازالے کو؟ سیکر بھائی یہ غلطی کا ازالے کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ تو ابھی تو ہم نے پڑھنی سٹارٹ ہی نہیں کی، ابھی تو ہم ویسے تبصرہ کر رہے ہیں، آپ حکم کریں کوئی ہے ٹاپک۔ میں نا اس کے لیے اس کے بعد ایک چیز آپ کو سجیسٹ کروں گا، اس کا تو ڈفرنٹ لیول کا شغل ہے۔ نہیں ابھی کریں، میں ویسے آئیڈیا لے رہا ہوں کہ 3-4 دن یا پورا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا تو پروگرام تھا پڑھ لیتے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، آپ کریں، اس میں کوئی مسئلہ بات نہیں، ہم تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کریں گے اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہوگا، نو ایشوز کے اندر۔ جی رائز بھائی نے کیا کلمۃ الفصل کی تحریر پڑھائی ہے آپ کو، کہ جو کلمۃ الفصل کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ذیشان بھائی ان کا میں کوئی نیوز رپورٹس بھی دینا چاہنا، ان کا قادیان دا جلسہ ہوا ہے بھائی۔ حکم یہ بلال بھائی کو جگا لیں، بلال بھائی قادیان میں سارے ٹھہر گئے، اتنی ٹھنڈ باہر بہنا بھائی دے بھائی، یہ کیا ہے جلسہ کر رہے نے، اتنی ٹھنڈ ہے لوگوں نے کپڑے پا کے انج بیگ ٹھر رہے نے، مر گئے نے سارے۔ شرم کرو بھائی۔ اس میں ایک بشیر بھائی یہ بات بتائیے گا کہ یہ دسمبر کے لاسٹ ہفتے میں ہی قادیان کا جلسہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ چھٹیاں سن، سانیاں نو چھٹی سی، تو مرزے نے کیا کرسمس بھی سارے جلسوں کی ڈیٹیں چینج ہوتی ہیں، قادیان کے جلسے کی ڈیٹ چینج کیوں نہیں ہوتی؟ وہ نہیں ہوئی۔ اور یہ کیلیفورنیا میں بھی جلسہ ہونا بھی صرف یہی دو ہیں، اور ساڈا تے اور آل ہے، ساڈے تے اتنی ٹھنڈ نہیں ہے۔ قادیان میں بھائی تصویراں بس دیکھ لو بھائی، لوگ ٹھنڈ کے بیٹھے افریقن بیٹھے تھے، انہوں نے اتنا کپڑا پایا، اور انہوں نے ہیڈ فون لگائے نہیں کیونکہ انہوں سمجھ نہیں آتی کہ کی بول رہے۔ یہ تو مسئلے مسائل تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ جی بھائی جی، اور بھائی ہم تو جلسوں میں جاتے تھے، میں لوگوں نے بڑا مزہ ہو کے دسنا، we walked in the front door and we walked out the back door۔ جب بھی پہنچے اسی سیکنڈ قادیان کے جلسے پہ گئے تھے آپ؟ نہیں میں کہہ رہے ہیں جی امریکہ میں جی جلسوں میں ہم جاتے تھے، ہم یہی ہمارا لہجہ اور وائب یہی تھا۔
या मतलब आप भी पहले कादियानी थे? जी बिल्कुल भाई, आप नहीं जानते भाई, आप कौन हो? तारिक नहीं साहब नहीं नहीं। भाई, मैं ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆ अच्छा ਕੇ, अच्छा ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਧਰ ਹੁਰਮ अच्छा ਸ਼ਾਹ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ठीक। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ते ਇम्तियाज और अदनान दोपहरी मेरे पीछे लगे सन सारे। अच्छा अच्छा ठीक थोड़ी सी हीट ऑफ हो गई है भाई। अच्छा एक मालूमात दसो कहंदे ने कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अच्छा अच्छा जी जी, मेरा कोई एम्स नंबर याद रखो, मैंने एमडी छड़ी सी कोई 10 साल पहले, उस अच्छा ਤੋਂ अच्छा ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ठीक है। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ। अच्छा ठीक है। तो नहीं किसी नहीं रिचार्ड दोस्त ਨੂੰ भाई, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? तारिक भाई सिर मैं इजाजत ले लूंगा। ले जी भाई सब भाइयों को, मैं फिर थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं हाजिर होता हूँ। रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चले गए बशीर साहब? नहीं साहिल कालू साहब। अच्छा जिशान भाई, मैं ये कह रहा था कलमातुल फसल की वो इबारत पढ़ी है जो राइज भाई ने तशखीसुल इज़हान से पढ़ी है, उसके साथ जो मिलती जुलती है। नहीं वो तो नहीं पढ़ी अभी तक। हाँ सफा नंबर वो पढ़े उसके अंदर मेरा पढ़ा। राइज भाई पढ़ाई है आपने? हाँ, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि सुनिएगा, अल्फाज के ऊपर गौर करिएगा जिशान भाई। लिखता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी बहुत से नबी आ जाते तो आपकी शान लोगों की नज़रों से गिर जाती, क्योंकि आपकी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि आपके बाद बहुत से नबियों के होने के ये मायने हैं कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा इतना मामूली है कि बहुत से लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह बन सकते हैं, क्योंकि जो कोई ज़िल्ली नबी होगा वो बावजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात हासिल कर लेने के मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कहलाएगा। अब ये याद करिए जो बात मैंने आपको कही कि ये कहते हैं नबूवत अपने कमाल तक पहुंच गई, उन कमाल तक पहुंचा कौन शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? मिर्ज़ा कादयानी के बकौल, उसके बाद कोई नहीं पहुंचना। तमाम कमालात हासिल करने के मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कहलाएगा। बस इसलिए उम्मत मोहम्मदिया में सिर्फ एक शख्स ने नबूवत का दर्जा पाया और बाकियों को ये रुतबा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि हर एक का ये काम नहीं इतनी तरक्की कर सके। बेशक इस उम्मत में बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जो उलमा उम्मती का नबिया बनी इसराइल के हुक्म के मुताबिक अंबिया बनी इसराइल के हम पल्ला थे, लेकिन इनमें सवाए मसीह मौद के किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का इतना कामल नमूना नहीं दिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामल जिल कहला सके। इसलिए नबी कहलाने के लिए सिर्फ मसीह मौद मखसूस किया गया। अब इसके बाद मुझे बता, जी जी कालू साहब ऐसे ही अवैस मौजूद हो? यार कहाँ गुम हो गए हो यार, तुम तो लगता है सोची पड़ गए, उस ब्रॉड को लेके तो नहीं सोची जा रहे कहीं? नहीं नहीं, मैं यार सब बड़े बैठे बात करें, मैंने क्या बात करनी है? ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। वो साहब भाई बैठे, राइस भाई बैठे नहीं। ओहो कालू साहब, हाँ हाँ मैं माजूद कालू साहब मैं भुल जाना हमेशा, कालू साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ।
किन्ने पेज पढ़े जे दे गलती दे ज़ाले दे? गलती के ज़ाले के तकरीबन कल को 3-4 पढ़े थे, ठीक है, और उसमें यही था कि यही था मेन, तो लोगों को बताने का यही मकसद था कि भाई इन तहरीरात से अब हम मतलब क्या लें, ये तहरीरात जितनी भी हैं सारी गुमराह कुन तहरीरात हैं, तो इनसे हम एग्जैक्टली लें और क्या लें। पारी दो यार है जाती है, पारी दो दी है रैपर ही दो। वैस भाई आप बताएं, आपने क्या नतीजा निकाला उन 3 सफ़ों में से? साहिल भाई मुझे तो कोई नतीजा नजर नहीं आया। अगर मैं कहूं कि मुझे ये समझ आता है जो पहले 3 पेज हैं, मुझे तो वो खत्म नबूवत के मुजाहिद लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई नबी आ ही नहीं सकता। खत्म नबूवत के मुजाहिद होते तो ये लिखते इन्हीं 3 पेजों पेशगोइयों के दरवाजे क़यामत तक के बंद कर दिए गए हैं और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज़ से अपनी निस्बत साबित कर सके। नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गई हैं मगर खिड़की सीरत सदीकी की खुली है, यानी फना फिर रसूल। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है इस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदिया की चादर है। इसलिए उसका नबी होना गैरत की जगह नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़ात से नहीं बल्कि अपने नबी के चश्मा से लेता है और ना अपने लिए बल्कि उसके जलाल के लिए। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं आप? भाई ये तो मुझे समझ नहीं लगी, आप क्या क्या गए हैं, इतना कुछ कह दिया आपने एक ही सांस में। मुझे आपने पढ़ा क्या फिर? चलिए मैं अपना लैपटॉप, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ, फिर आपको एंगेज करता हूँ दोबारा, वेट करें थोड़ा। मैंने इसी वजह से पूछा था कि आपने पढ़ा कितना है। आप लोगों ने खुद बताया कि 3 से 8 पे। पूरी पढ़ी है गलती का ज़ाला। मैं तो भाई ये आपके सामने उस गलती के इजाले की ही स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, इसमें तो आपको पता नहीं लगा क्या लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ आपको, मैंने कहा मैं आपको एंगेज करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा टाइम दे मुझे, मैं करता हूँ आपको एंगेज। ये जो कहते हैं ना कि हम ये गलती का इजाला पे गुफ्तगू करते हैं, हमारी बात सुने, हमने पढ़ा है। आज मेरे साथ बैठे नजर, मैं अभी तो पूछो ना उनसे क्या क्या पढ़ा उन्होंने। अच्छा साहिल भाई, आपको ख़त्म नबूवत का मुजाहिद फिर बना दें मिर्ज़ा साहब को? आप कहते हैं तो आपको दलील दे देते हैं हम। हाँ, खत्म नबूवत का मुजाहिद वो मिर्ज़ा कादियानी की अपनी नबूवत के बाद बनता था, ये बात मानता हूँ मैं। जो मैं ऐसी ना रैंडमली कोई एक हवाला देख रहा था तो एक आगे मैं पढ़ना शुरू हो गया तो वक्त ज़ाया करने के लिए, तो ऐसी बात उसने लिखी हुई है ना मिर्ज़ा ने उसके अंदर बराहीन अहमदिया दोम में, कि उससे उसका सारा मुकदमा जो है ना साहिल भाई, कि इतनी जी ये फैल गई थी और शिरक था, ये था वो था, तो जी एक ने आना था हुआ जाता था वक्त, ये सारा मुकदमा ज़मीन बोस हो जाता। उसने बराहीन अहमदिया में लिखा हुआ कि कुरान भी महफूज है, कुरान की तफसीरें भी महफूज हैं, कुरान की समझ भी महफूज है। सारे मुसलमान पहले तो थोड़े से थे जो कि तौहीद पे कायम थे, अब तो जो है वो पता नहीं 50 करोड़ या कुछ इस तरह उसने क्या ये इतने मुसलमान जो है वो तौहीद पे कारबंद है और गैर मुस्लिमों को दलाइल दे रहे हैं इस्लाम की तरफ। तो जो भी ज़रा थोड़ा बहुत भी गैर मज़हब फैल रहा है तो उसकी सुबकी हो रही है, और इस वजह से किसी और ना हमें किताब की ज़रूरत है और ना किसी और रसूल की ज़रूरत है। तो आप बताएं फिर, ये मुकदमा नहीं है खत्म नबूवत का? मुकदमा तो है, लेकिन फिर आगे जाके यही लिख दिया जाए कि अब मैं हूँ नबी, पूरी उम्मत मोहम्मदिया में मेरे से पहले किसी को ये नाम पाने का कोई मुस्तहिक ना हुआ कि मैं ही हूँ, तो फिर उसके साथ इसको क्या कहा जाएगा? वो फिर वो 7 वचन बार बार कह रहे थे सैयद भाई, उसको जोड़ने पे यही तो मसला ना, मजमूई तौर पर जितनी बात है सबका कंक्लूजन क्रक्स जो है वही निकालना पड़ेगा ना। अब वो उसने जहाँ पे कोई शख्स ये कहे कि देखो उसने तो ये कहा है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दावा नबूवत करे वो काफिर है, दज्जाल है। अब यही स्टेटमेंट लेके कोई निकल पड़े जी देखो मिर्जा कादियानी तो कहता है दज्जाल है, तो लिहाजा मिर्जा कादियानी को क्यों दज्जाल कहते हो? ये गलत है। अच्छा चलें, आप अपने ईमान से बताएं स्टेटमेंट गलत है, आपको मुखालफत भाई कहने वाले की देखना पड़ेगा कि कहने वाला खुद इस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट करता है। वो तो कह रहा है कि काफिर है, उसने क्लियर कहा कि काफिर है, दज्जाल है, मुसलमा का भाई है। तो जो एक बात में झूठा साबित हो जाए तो उसके बारे में क्या कहते हैं? वो हर बात में झूठा।
गया ना गल, फिर अड़ गई ना, प्रोग्राम अड़ गया सारे का सारे ही। मैं दलील देखी नहीं आपकी आती हुई, वरना मैं इसको कोई करता इसकी भी ताकि राज भी चेक किया जी, दोवें जड़े ना कल दा लगे सर, एक गलती का इजाला है, गलती का इजाला जी, वो तो ऐसे होता है, वो तो ऐसे होता है। हाँ इतने बैठे ना करो ना, दोवें जने खोलो ना माइक अपने, करो ना गल, तुहानूं वेखा किड्डा कुछ एक गलती का इजाला किन्नी कु पड़ी तुसां उधर गल्लां च लग गया जी, एक बंदा लभ गया, मैं लैपटॉप दे कोल कोनी आ, दोवें हुण इधर उधर भजण रहे ने। वेंदा भी है गौर गौर ना मेरे नाल वेंदा भी है कि किहड़ी गल्लां करदा भाई, जिन्ना मर्जी वेख, इत्थे डरदा तुहाडे कोल, मैं तो खुलिया गल्लां करनियां यार कालू साहब थोड़ा तलक जमात नाल है। हाँ जी हाँ जी, मेरा तलक जमात ना है। बंदा कंफ्यूज करता था पढ़ के। जमात अहमदिया बात नाल यह है या कि आपका मुकाबला नहीं हम कर सकते, आप जमात के जो हैं एक बड़े मुबल्लिग हैं, इसलिए आपका मुकाबला नहीं हम कर सकते। अवैस भाई ये बात सच है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मिर्जा साहब की जो कुतुब है उनके साहिल भाई है ना, उतने जमात वाले नहीं। जमात साहब जमात वाले झूठ बोलते हैं मिर्जा साहब पे, साहिल साहब ने झूठ नहीं बोलते मिर्जा साहब हम पे, पागल हैं, आप पेश चैलेंज करते हैं जो करते कि मिर्जा हैं, साहब पता नहीं होता कि आपको चैलेंज करें हम। काले कुत्ते ने काटा हुआ हमें, ऐसा है जियान, सानू काले कुत्ते ने वड्या, साल भाई चैलेंज करिए। मैं चैलेंज तो नहीं करता, पर ਕੀਤਾ। एक दिन मैं तो नहीं भाई बैठे ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਬਰਕਸ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈलेंज ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। दूसरा ब्रिटिश सरकार की अतात के खिलाफ आपने हवाला निकाल के देना। लो जी एराइज भाई, अगर निकल आया तो क्या, सरकार और जहाद दोनों का मैं सर दोनों का निकाल के दूंगा आपको। वो भी डोनर साहिल साहब ने डोनर बड़ा पसंद है, डोनर। फिर आपको वो करेंगे, हम बैत करेंगे आपके हाथ। बैत करनी है तो बैत की शर्त तो कल पूरी हो गई है मेरी, कल की सर पेशगोई पूरी हो चुकी हुई है, बैत पहला करो मेरी होना। अच्छा मैं ना एक आदमी को लेने लगा हूँ ऊपर, चले गए ना, अली भाई कितने गए, अली भाई को लेना तो है ही नहीं थले, चलो करो गल। ना साहिब ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं मानना, मुद्दा ही मानना नहीं, नबी हाँ या ना, जो मानते हो या नहीं? सर देखें, जहां तक बात है ना हाँ में ना में, अगर इसी सवाल को मैं आपके ऊपर रिपीट करूं जी और कहूं कि तारिक जवेद साहब आपने माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि ये मिसाल ही आपने कुछ ऐसी देनी पड़ रही है जो कि आपका सवाल ही ऐसा है। क्या आपने अपनी वालदा को थप्पड़ मारना बंद कर दिया? ये सवाल कैसा है? थप्पड़ को कौन मारता है? अपनी जवाब देना, अब हाँ या ना में जवाब दे। भाई थप्पड़ मार, सवाल ही गलत है तो आप कहे नहीं नहीं कि क्या मतलब सवाल ही गलत है। थप्पड़ मारने के पहले कैसा सवाल है आपने किया है? नहीं आपने जवाब, आप क्या जवाब देते हैं इसका, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका? ये जवाब है ही नहीं, इसका सवाल ही गलत है ये। तो आपका भी सवाल गलत है ना? इस तरह कि नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं या नहीं मानते, बस इतनी बात। हम मानता हूँ या नहीं मानते? हम नहीं मानते। अब आप किस तरह से नबी साहब पूछ रहे हैं उसी तरह से मैं बताता हूँ। इसी तरह के छोड़ आप किस तरह से पूछ रहे हैं? इसका जिक्र कुरान में आता है, जितने अंबिया के, आप उसी तरह के नबी मानते हैं मिर्जा साहब को? कुरान में कितने अंबिया का जिक्र आता है? कि किसका? और वो किस तरह के नबी थे? नबी थे बस, अल्लाह के नबी थे बस, इस तरह के उस तरह के तो नहीं थे, नबी थे बस। नबी हैं या नबी नहीं है बस, ये उस तरह के इस तरह के तो कोई लफ्ज नहीं है कुरान में। लेकिन गुस्ताखी ना कीजिएगा। बात सुन, मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, आप खुश होंगे। बल्कि दूसरे कादियानियों ने कहा है कि आपको बड़ी मुबारकबाद ख्वाब आई। ख्वाब ये थी, रोमा शहर में
अच्छा मेरे साथ कादियानी रिलेट ना करें, मैं कादियानियों को नहीं जानता, मैं हकीकी सच्चा अहमदी हूँ। चलो जी ठीक है, मैं अब उनकी बात कर हाँ जो कह रहे थे। तो रोमा शहर में 2 स्टेशन है, एक बड़ा स्टेशन है तरमीनी और दूसरा तीबर तीना है। मैं तीबर तीना स्टेशन के प्लेटफार्म में खड़ा हूँ, मेरे साथ आमन अजीज साहब भी और दीगर मुसलमान भी हैं। और जबकि प्लेटफार्म एक पर यानी दूसरे प्लेटफार्म पर मिर्ज़ा साहब खड़े हैं, उनके साथ मिर्ज़ा ताहिर साहब खड़े हैं और काफ़ी लोग खड़े हैं। मैं दूर से आया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब से आप पूछ लें कि क्या आपने नबी होने का दावा किया है या नहीं किया, कि लोग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं किरम खाकी हूँ, ये उनके लफ्ज़ मैंने सुने हैं। तो फिर मिर्ज़ा ताहिर साहब कहते हैं कि ये आजली और इनकसारी में शेर बयान किया गया है, इसमें उनकी पर्सनल जातियात के ऊपर जो उनका क्लेम है उसका तलक तो नहीं ना बनता इससे। मैं एक मिनट बात सुन लेना। मैंने कहा कि भाई, फिर मिर्ज़ा ताहिर साहब कहते हैं कि भाई स्पीकर लेकर आओ ताकि आवाज़ दूसरों तक पहुंच जाए। मैं कहता हूं कि आवाज़ आपकी बड़ी आ रही है मिर्ज़ा साहब की, और मिर्ज़ा साहब को मैंने देखा है कि उनका कद छोटा है और ताहिर साहब का कद बड़ा है। उन्होंने वो पगड़ी पहनी हुई है और उनके सीने तक वो उनकी पगड़ी समेत आ रही है। और मैं कह रहा हूँ कि पूछे उन्होंने नबी होने का दावा किया है या नहीं किया है। तो मिर्ज़ा साहब नारे लगाओ, मिर्ज़ा साहब की जय, मिर्ज़ा साहब की जय, ये नारे लगाने शुरू कर। जवाब आपको तारिक जवेद साहब आपने नहीं ये पढ़ा ना, असल में मुखालिफ जो है ना वो किताबें नहीं ये पढ़ते। नहीं ये सुने, आप पर्चियां लेके आ जाते हैं, कभी ख्वाब लेके आ जाते हैं। सुने क्या कहते हैं मिर्जा साहब कहते हैं, अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। मैं इस तौर से जो वो ख्याल करते हैं, ना नबी हूं ना रसूल हूं। हाँ, मैं इस तौर से नबी और रसूल हूं जिस तौर से मैंने अभी बयान किया है। बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्ज़ाम लगाता है कि जो दावा नबूवत और रिसालत का करते हैं वो झूठा है और नापाक ख्याल है। जी तो इसमें क्या है, यही कह कि मैं नबी नहीं हूँ। उन्होंने कह दिया मैं नबी नहीं हूँ। हम तो यही ख्याल करते हैं क्या ना है, जिस हाँ वो कहते हैं मैं जी उस तौर से जिस तौर पर तारिक जवेद साहब ख्याल करते हैं, ना नबी हूं ना रसूल हूं। हाँ, इस तौर से नबी और रसूल हूं जिस तौर पर अभी मैंने बयान किया है। वो क्या बयान किया उन्होंने कि मैं जाहिल मुखालिफ क्या कहते हैं, क्या वो क्या उन्होंने क्या बयान किया, बता दे फिर उन्होंने क्या बयान किया, किस हिसाब से बयान यही मसला ना, आप लोग किताबें नहीं पढ़ते। आप लोग किताबें पढ़े तो नहीं। आपको पता चले ना किस इस टॉपिक पे तरीके किया। से जो आपने कहा है जाहिल मुखालिफ वाली, इस तरीके में उन्होंने किस हिसाब से किस किस्म का नबी के होने का दावा किया, ये बता दे। पढ़ी है उनकी। ये फिक्र जो आप कर रहे हैं, इसी पे बात करते हैं, बाकी किताबों छोड़ दो। ये किताबें किस हिसाब से नबी हैं, वो कह रहे हैं कि वो जाहिल मुखालिफ है जो मुझे नबी मानता है, जो कहता है कि ये नबी। तो उन्होंने यही कहा कि मैं नबी नहीं हूँ। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने नबूवत का दावा किया है, वो कहते हैं मैंने दावा दोबारा नहीं। सुनो, तारिक जवेद साहब, तारिक जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। अब कोई शख्स उठ के तारिक जवेद जैसा मिर्ज़ा साहब पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मिर्ज़ा साहब तारिक जवेद साहब को जवाब देते हैं, मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। तारिक जवेद साहब, जिस तरह से आप ख्याल करते हैं, ना मैं नबी हूँ ना रसूल। हाँ यार रुक जाए, मैंने हाँ, कहा है कि मिर्जा साहब नबी हैं, उन्होंने कहा मैं नबी नहीं हूँ, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा मैं नबी नहीं हूँ, आप बात पता नहीं खत्म नबी हो को गई। नबी किस डेफिनेशन को नबी क्या मानते हैं। जिनका जो कुरान में है वही नबी है, नबी होता है या नहीं होता है, बस यही बात है। नबी देखें, नबी जो होता है ना, नबी कहते हैं खबर, जिसको अल्लाह ताला गैब से खबर देता है उसको कहते हैं। हाँ, तो खैर से बस जो भी हो, नबी का लफ्ज़ जो हमने कुरान में पढ़ा है, ये 25 नबी अम्बिया का जिक्र है, उनके बराबर है, उनमें फ़र्क नहीं है। अगर वो उस तरह के नबी हैं, वो कहते मैं नबी नहीं हूँ, बस बात खत्म हो गई। क्या इसमें और क्या चाहते हैं आप? नहीं, तो वो वो कहते हैं मैं उस तौर से नहीं, वो नहीं कहते हैं मैं उस तौर से नबी हूँ जिस तौर पर मैंने अभी बयान किया है। भाई पहले इसी को ख़त्म कर देते हैं कि जाहिल मुखालिफ ये कहते हैं कि वो नबी है, यानी जो जिनका जिक्र कुरान में है, ऐसे तो नहीं ना, आप कहें कि कुरान करीम में लिखा हुआ है नमाज के करीब ना जाओ, फिर इस
जिस तरह के जिक्र कुरान में आया है, तो वो कहते हैं मैं नबी नहीं हूँ, बस बात खत्म होगी। उसके आगे क्या कहते हैं, फिर आप आगे पढ़ें। आपको नहीं समझ आ सकती, आप में थोड़ा सा अस्सलामुअलैकुम। के लिए इरफान है आप पे। जी नहीं वालेकुम बात सलाम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आ रहा हूँ भाईजान आपके लिए। आपको कोई और बंदा नहीं मिला, आप इसके साथ बहस स्टार्ट कर दिया आप हैं। ए ए अगर जो आप ए सुबह कुछ और, शामी कुछ और, राती कुछ और, पता नहीं। ए पागल जो होंगे ना बंदे, यूरोप च रह के पागल क्यों जाते हैं, अक्सर कल्ले रह के ना बंदे ऐसे हो जाते हैं। भाई शादी शुदी कर लेनी चाहिए, बेशक यूरोप च ही कर लो, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਐਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ही अपना जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सुबह कुछ और होता है, सुबह कुछ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸੱਦਕਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਰਤਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी हाँ जी, मैं देखी वीडियो उसने मिर्जा साहब की गुस्ताखी की है, उसने मिर्जा साहब को कज़ाब दजाल कहा है। अब जमात अहमदिया उसका कुछ कर नहीं रही, जमात अहमदिया डरती है कहीं जवाद का इखराज किया तो वो अंदर की बातें ना बता दे, तो इसलिए उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। जी वालेकुम सलाम। ये तो बहुत बन गया ना हजूर, मेरा भी मसला हल करो। जी जी मसले हल करते आए हैं जनाब, दसो की मसला है। रोम ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਨੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਨੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਮਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਬੇ ਖਾਕੀ ਹੂੰ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਣਾ, ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਾਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਰਣਜੀਤ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 500 ਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਾਲੇ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 5-10 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਆਖਰ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਠੋਕ ਛੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਕੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ मिर्जा साहब का दावा है, ये कहता है बिल्कुल मिर्जा साहब का दावा इसी तरह ही है जैसे वो डर फिल्म में शाहरुख खान कहता है, किरण तुम मेरी हो, किरण तुम मेरी नहीं हो, किरण तुम मेरी हो, किरण तुम मेरी नहीं हो। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। توبہ یا اللہ क्यों वाटर साहब? एक इन्होंने एक और गाना भी था, वो मुझे भूल गया। इन्होंने एक और गाना भी बताया था कि मिर्जा साहब की नबूवत पर हमने ये गाना है, उसमें भी कुछ ऐसे ही था। ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਅਸਲੀ ਉਮਤੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, हाँ हाँ, ਇੰਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। नहीं ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ screenshot ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁੰਬਾ ਖਬਾਸਤ की तरफ लौट जाएगा, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਸੇ ਖਬਾਸਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ। نہیں ویسے بہت جاہل popular مخالف ذریعے میری جڑے نا نسبت یہ وہ الزام پوری لگاتے ہیں کہ میں ان کے سنت خوابوں میں آتا ہوں۔ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਭੌਂ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੂ ਛਿੱਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਜੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਮਿਲੇਗਾ ਟੁਰ ਪਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਛਿੱਕਣਾ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਮਸਲੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਾਂ ਜਾ, ਗਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। और शायद चले गए, शायद कालू साहब चल के रहे हैं। ਉਹ ਐਨਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ। ਮਾਂ ਯਖਿਓ ਮਸਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। सब ठीक है ਉਹ आज ਸੁਣਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹਾਲ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਮਾਂ ਯਖਿਓ ਮਸਲੀ ਚੰਗੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਂ ਯਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲੀ ਹੋ ਪਿੱਛੂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਂ ਤਬਲੀਗ ਯੂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਯੂ ਫਕਿੰਗ dickheads। ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਭੈਣ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਯਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। चांद भाई सुबह देखा था आपने शुगल? निशान भाई तुसी बिजी हो? मैं के सुबह शुगल वेख्या सी, अनवर अवान दा शुगल, ते फिर उस तो बाद अली अकबर आया तो उन्हें गल ही मुका छड़ी है।
پتہ نہیں کس نے اتارا نیچے، مجھے نہیں پتا.